Hello, beautiful people. I'm Helio Swala. This is my YouTube channel and this is my Instagram account. ठीक है? So अगर आपको self growth में interest है, stay tuned. Today we are going to talk about father of Indian statistic, which is Prashanta Chandra Mahalanobis. मेरा pronunciation गलत हो सकता है because yeah ये बंगाली नेम है. So yeah, I don't know. Listen, I don't know. But हाँ, he's a father of Indian statistic. ठीक है? Now, why it is important to learn about his life lesson? Because man, मैंने जब उनके बारे में लाइफ लेसन के बारे में सीखा, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ और कुछ चीज़ें मुझे मतलब मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ मेरी लाइफ में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई फील लाइक इट कैन इट कैन हेल्प, इट कैन रियली डू हेल्प. और समटाइम्स दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गो आउट ऑफ देयर वे. और हम सबको पता है कि हेलन केलर की स्टोरी क्या है, महात्मा गांधी जी की स्टोरी क्या है, सबकी स्टोरी हमें पता है. बट इट्स द मोर द मैरियर. So it's never too less to think about it. So first and foremost, how he get out of his comfort zone, just just to learns about something that he loves. So first, he completed his higher education in physics. Then he go abroad to learn physics. Then he studied that one journal in which they talked about how statistic is affecting, how we can use statistic to do the different things in society like data measurement and everything which is we use in nowadays. So उस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो फ़ैसिनेटेड हुए कि यार ये तो बड़ी अलग ही चीज़ है, ये करना चाहिए. और फिर ही कीप स्टडीइंग अबाउट इट एंड आफ्टर स्टडीइंग इनफ अबाउट इट ही स्टार्ट डूइंग इट on his own in when he came back to India. Now why I'm telling you this, because few days ago I talked with this one girl. She was very interested in Ayurved, but she told me that listen, my parents and everyone want me to go to doctor, become a MBBS doctor, and yeah, all of that. And then I feel like, wait, so you are, and she told me very interesting thing about Ayurveda as well. She talked a lot about it and I feel like, wait, this is something I don't know. Thank you for telling me. And then she goes like, huh, but I thought like, okay, so you are going to Ayurveda, right? It's really good that you are taking something that you love. And he was like, no, I'm not going in Ayurveda, I'm going for a doctor study because everyone says that there is no scope. Now I was just thinking like, wait, and this is this topic is very connected to me because some many people told me that when I was taking environment science that listen, there is no scope in this field, you are not going to get successful, you are not going to earn money or anything. Then I still I choose it because who you think I am Helio Ozwal. I will do what I want to do, like, to be honest. So yeah, I still choose environment science. And then I come across this one beautiful, beautiful teacher who she told me that whenever if there is no scope, you can create it. Like just think about it. Like आपने पूरा खाना खा लिया है एंड स्टिल कोई आके आपके सामने आपका फेवरेट डेजर्ट, आपकी फेवरेट चॉकलेट रख दे. What do you think? You will eat it. I will eat it. It's always about that thing. कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, यू कैन गो आउट देयर एंड डू द थिंग दैट यू वांट. पीपल विल ऑलवेज से इनको उस टाइम पे स्टैटिस्टिक, उस टाइम पे सोसाइटी को मैथ से कैसे कर कर सकते किसी को पता नहीं था. ये पागल समझते थे. कि अभी हमें पता है कि स्टैटिस्टिक, मैथ्स, एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट. We can do so many calculations and it use at every step, but during that time, not a chance. So yeah, I just wanted to tell all of you this, that if someone tells you that there is no scope, tell them that there is no scope, I will listen to you. You do what you want to do. It's always your choice. It's always something that you want to do. And that's what will you do. It's never depend on what, because आपको क्या लगता है कि आज हम जहाँ पे हैं अगले 10-15 साल भी बाद भी हम वहाँ पे ही होंगे? No. Go for that damn thing that you want to do. This is the first lesson I learned from him, and I'm very proud of him, proud of myself, proud of
that girl, I give her the advice. I don't know if she's going to take it or not, but I hope she takes it because yeah, she deserves it. ना सेम वे, जब उन्होंने अपनी रिसर्च के बारे में लोगों को बताया, लोगों ने उनको मिसअंडरस्टूड किया। उन्होंने बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट, वेट आई हैव द नेम ऑफ इट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 में बनाया। इट्स अ ह्यूज कैंपस एंड मैसिव, विदाउट ह्यूज कैंपस और मैसिव फंडिंग। उन्होंने बिकॉज उन्होंने एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें। वाई? बिकॉज ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, व्हाट डू यू थिंक, हर एक चीज़ तुरंत बड़ी नहीं होती है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, it's okay to take it small. It's okay to start very slowly because sometimes small beginnings matter too. And another thing is that when he told people about his research, they didn't believe them. कि यार क्या बोल रहा है, पागल हो गए क्या? This is what their reaction was. But when he succeeded, now we all know the importance of his work. सेम वे, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे, जैसे मैं अपना एनवायरनमेंट का ले रही हूँ, या वो लड़की जो है वो अगर आयुर्वेदिक ले रही है, तो पीपल विल थिंक, पीपल विल टेल यू, पीपल विल डिमोटिवेट यू, यार तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं, तुमने ये क्यों लिया, यू कैन इजीली वेंट टू एनी अदर। आई केम हियर बिकॉज आई वांटेड टू। इट्स नेवर अपॉन समवन एल्स, इट्स नेवर अपॉन anyone else to decide what I want to do with my life. And if I'm confident in my life, I better choose that which I feel fulfilled by doing it. Don't, this is the main thing. He faced conflict on every step of his life. Still he preferred to keep going and keep growing, and today he is at this place. दूसरा चीज़, जब इन्होंने अपना वर्क करना शुरू किया इंडिया में, तब ब्रिटिश राज चल रहा था। नाउ व्हाट डू यू थिंक, किसी इंडियन को इन्होंने बहुत इजीली वर्क, अपनी रिसर्च और उन सब में वर्क करने अलाउ किया होगा? ऑब्वियसली दे डिडंट। ही नीड टू लर्न सम डिप्लोमेसी टू वर्क थ्रू इट। जब भी एक चीज़ है, देखो, मैं ये गीता का संदेश भी मानती हूँ, एंड आई फील दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, तब कृष्ण जी ने बोला कि नामर्द बनना बंद करो और गो आउट देयर एंड, मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े योगी बन रहे हो क्या यहाँ पे, मतलब कि नहीं जाने दो मेरा राज, नहीं, गो आउट देयर एंड अर्न व्हाट इज योर्स, लाइक ले लो उसको। सो या, sometimes you have to be political, sometimes you have to use diplomacy to get what you want, because आप आपको हमेशा चीज़ें मांगने पे नहीं मिलेगी। आपको चीज़ें कभी भी, इट्स नॉट दैट इजी। और अगर आप 22-23 साल के हो चुके हो, 20-25 साल के हो चुके हो, आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। पॉलिटिक्स, मांगने पे चीज़ें नहीं मिलती है, छीननी पड़ती है, और ये हुआ है। सो या, even though you are right, doesn't it make things easier for you कि हाँ मैं तो सही हूँ, सब इजीली आ जाना चाहिए? नहीं होगा। You have to be political। अगर आपको पता है कि आपके घर वाले आपकी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएट, दिस इज नॉट माई रियल लाइफ एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल माई मॉम डैड नोज कि मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। बट अगर एक फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपके मॉम डैड को नहीं अच्छा है, वो आपका फ़ोन ले लेंगे, ये वो, आपको छुप छुप के करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। टेल दैट लाई। अगर आपके घर वाले आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, टेल दैट लाई, because it is, you know in your gut that what you are doing is good। I know in my gut कि मैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ वो अच्छी चीज़ है, मैं कुछ बुरा चीज़ें नहीं फैला रही हूँ लोगों के बीच में, एग्जाम्पल, ओके। एंड एट द सेम टाइम, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, मतलब नॉट जस्ट घूमने, फॉर सम एक्सपीरियंस, जैसे कि कुछ लड़कियों को कॉलेज से घर ही आना होता है, वो उनको कहीं आजू बाजू जाने नहीं देते,
दे देयर मॉम डैड प्रेफर्स कि नहीं बच्चा जाए स्कूल, घर आए, कॉलेज है, घर आए, बस दैट्स ऑल, वी कैन नॉट गिव यू एनी अपॉर्चुनिटीज। इवन कहीं पे कुछ हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, दे स्टिल नॉट अलाउ यू। टेल दैट lie, because this is how you are going to expose yourself to that world which you are living in. आप अपने घर में रह के अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते, अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। यू हैव टू गो आउट देयर एंड मेक सम नॉइस so that people can listen to you. This is how works and this is how world works. अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ this person don't support me, but you think you are what you are doing is it true, this is your time to take action and let them be in a silence. Block them. नहीं मैं तो नहीं कर रही, आप बहुत सही बोल रहे हो भाई, इतना सही। And do the thing and tell them, listen, I did this, I know you must be angry, but I did it anyway, because this is what I feel like it's a right way. Because हमें अगर सोचो ना, after so many years you think about it कि you know यार काश उस टाइम पे वो कर लिया होता। दिस थिंग इट हर्ट्स माई हेड मोर देन एनीथिंग एल्स कि मेरे को ऐसा हो कि मेरे मैंने ट्राई नहीं किया। मैं फेल हो गई, ठीक है चलो ओके इट्स गुड, ट्राई तो किया। एटलीस्ट मेरे दिमाग में ऐसा होगा कि हाँ मैं फेल हो गई थी इसलिए मैंने रोक दिया या मेरे से नहीं हुआ, मैंने सब कुछ कर लिया, एक्स वाई जेड, अपना पैसा भी लगा दिया, जो करना था सब कर दिया, बट नहीं हुआ है। बट लिविंग अंडर दिस कि व्हाट इफ अगर मैंने ट्राई किया होता, it can hurt my head more than anything else, truly and genuinely. And another thing, curiosity. It can change your destiny. For example, वो एक जर्नल उन्होंने वो एक जर्नल पढ़ी और उसमें से उनकी सोच बदल गई। वो क्यूरियस नहीं होते तो तुम आपको क्या लगता है कि वो जर्नल उठा के पढ़ते? नहीं पढ़ते। एक चीज़ है कि इवन दो कुछ लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस, ओके, बट आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में पढ़ोगे, लर्न करोगे। द मोमेंट यू सेड कि नहीं मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई एंड आई विल नॉट लर्न, इट्स एंड ऑफ योर लाइफ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज देयर इज़ नॉट अ चांस कि आप कुछ लर्न ना करो अपनी लाइफ में। सो ऑलवेज स्टे क्यूरियस। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इनोसेंट चीज़ है जो बच्चों में देखने को मिलती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि माँ बाप उसको मार देते हैं। कई बार कई किस्सों में मैंने देखा है कि दे डोंट अप्रिशिएट दैट चाइल्ड आस्किंग टू मच क्वेश्चंस, बट वही तो है उनकी लाइफ में जो उसको आगे बढ़ाएगी। अगर उसको क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी वो पढ़ेगा कैसे? वो उसको अगर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कैसे करेगा? क्यूरियोसिटी, आई फील लाइक personally for me, curiosity is the fuel of everything I do. I am creating this content. Why? Because first मुझे खुद को नॉलेज मिलता है, सेकेंड मुझे वो दूसरों को बताने को मिलता है, एंड आई लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली। एंड yeah, I'm not just sitting around here and waiting for like मेरे दिमाग के बटन ब्लॉक करके नहीं। क्यूरियोसिटी, इट्स ऑलवेज इन अ बेनिफिट। कई बार कुछ क्यूरियोसिटी ऐसी होती है पॉइजन को टेस्ट करने वाली, वो जो हमें नहीं करनी चाहिए, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। क्योंकि देखो एक चीज़ है, हम लोग ना जब मैं रिसर्च या फिर कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि क्रोकोडाइल्स की जो मांद होती है, मतलब आई डोंट नो आप उसको क्या बोलते हो, वो उसका क्रोकोडाइल्स का घर होता है जो अंदर बनाया हुआ होता है। उसमें जाने से पहले ना हम देखते हैं कि उसके जो वेट फुटप्रिंट्स है या नहीं। अगर उसके वेट फुटप्रिंट्स है, ताज़ा फुटप्रिंट्स है, हम नहीं जाते हैं। उस टाइप की क्यूरियोसिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस टाइप की क्यूरियोसिटी की बात कर रही हूँ जिस क्यूरियोसिटी में फॉर एग्जांपल अगर वो ड्राइड है, वहाँ पे फुटप्रिंट्स इतने ताज़ा नहीं है, बहुत पुराने दिख रहे हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले के, एंड देयर इज़ नो ट्रेल ऑफ दैट क्रोकोडाइल वी कैन सी अराउंड इट, वी कैन गो देयर एंड सी इट, वी कैन चेक इट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्यूरियोसिटी इज़ ऑलवेज गुड, बट इट डज़न्ट मीन कि आप आँखें बंद करके अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे जाओ, क्योंकि समटाइम्स क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, बट इट डज़न्ट मीन इट ऑलवेज हार्मफुल। You go out there, ask questions, teach us
क्वेश्चन पूछना तो बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन एज अ वेरी फेमस थिंग समवन सेड, अगर आप नहीं पूछोगे तो आप बेवकूफ रहोगे ही रहोगे। पूछ लोगे तो शायद बेवकूफी कम हो जाए। Doesn't mean you are बेवकूफ, but yeah, I'm just telling you to make you understand my point. I hope you understand. So yeah, that's it for today. There are so many lessons from his life. There is not only one or two. There are so many lessons. But I feel like I cannot explain someone's whole life lesson just by this one video. These are some which is very touching, which is very close to my heart. That's why I describe it to you. Okay, bye bye. Cheers to life.